آج بدھ ہے اور اگست کی 5 تاریخ۔ ZBC سے عربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بہت جلد کھول دی جائے گی، بصورت دیگر ایران کو بہت شدید حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ نے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے ذخیرے کا تقریباً تمام حصہ استعمال کر لیا ہے۔ This is really the story starts in the 1990s. With the end of the Cold War, the US Defense Industrial Base was greatly shrunk. ایران کی آبنائے ہرمز پر عمان کے ساتھ مثبت مذاکرات کی تصدیق، تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ We are talking about a single corridor with two-way traffic, not 2 or 3 separate routes. This middle route is intended to be used temporarily. There will be no substantial change in the situation in the Strait of Hormuz. یمن کے حوثیوں کا سعودی آئل ٹینکر پر میزائل حملے کا دعویٰ۔ تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر۔ روسی میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا مزید فضائی دفاعی نظام کا مطالبہ۔ Важко почався день після масованої російської балістичної атаки. 35 ракет, більшість балістика, ще майже 190 дронів різних типів. چلیں گے شانگلہ کے علاقے پیر آباد میں، جہاں پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے سورنج میں کوئلے کی ایک کان میں ہونے والے دھماکے سے ہلاک ہونے والوں کے 28 جنازے لائے گئے۔ شانگلہ کے گاؤں پیر آباد میں سنیچر کے روز 28 میتیں لائی گئیں۔ جمعرات کو بلوچستان کے علاقے سورینج میں کوئلے کی کان میں حادثے میں ہلاک ہونے والے 34 افراد میں سے 28 کا تعلق اسی گاؤں سے ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے 7 برس مکمل، مودی کا ترقی کا دعویٰ، جبکہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا نہ بھولنے اور نہ سمجھوتا کرنے کا موقف۔ 5 اگست 2019 کو یہ سب ہوا، آج 5 اگست 2026 ہے، 7 سال ہو گئے۔ ہم سے تو وہ وعدہ جو کیا گیا تھا وہ بھی ابھی ادھورا ہے، باقی چیزیں تو دور کی بات، لیکن جیسے ہم نے اسمبلی میں ریزولوشن پاس کرتے وقت کہا، ہم اپنی جگہ قائم ہیں نا۔ جانیں گے کہ کیا میانمار کے فوجی سربراہ کی بڑھتی طاقت انہیں عالمی قبولیت دے سکتی ہے؟ روس اور چین کے حمایت یافتہ فوجی حکمران اونگ آئین مزید طاقتور ہو رہے ہیں، اور جس انقلاب کا خواب برما کے عوام نے دیکھا تھا وہ تھمتا نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی جانیں گے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی کی سیاسی اڑان میں اہم کردار ادا کرنے والے پراشانت کشور کی BJP کے خلاف فتح کیوں اہم ہے۔ باقی پور کا جو آج مینڈیٹ آیا ہے، یہ صرف ودھایک نہیں چنا گیا ہے، باقی پور کی جنتا نے بھاجپا کے کیندریہ نیترتو کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ سمراٹ چودھری کی جگہ کسی بہتر ویکتی کو بہار میں مکھیہ منتری بنائیے۔ پاکستانی بینکاروں کا نیا بزنس آئیڈیا کہ عورت کو اگر عبایا پہنایا جائے تو زیادہ نوٹ بن سکتے ہیں۔ سنیں گے بینکوں میں خواتین کے لباس سے متعلق ہدایات پر صحافی محمد حنیف کا تجزیہ۔ ان بینکاروں نے ایک نیا بزنس آئیڈیا ڈھونڈا ہے کہ اگر عورت کو عبایا پہنایا جائے تو نوٹ اور بھی زیادہ بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ میں دین اور دوسرے میں دنیا، تو آپ ایک ہاتھ سے تسبیح گھماتے رہیں، دوسرے ہاتھ سے نوٹ گنتے رہیں، اور ایک ہاتھ کو کبھی یہ پتہ نہ چلے کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے۔ امریکی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کا راکٹ ممکنہ طور پر چاند سے ٹکرا گیا۔ ناسا کے مطابق زمین کو کوئی خطرہ نہیں۔ mission he's talking about was the iSpace Hakuto and the Firefly Blue Ghost mission that we launched. As you all see on the webcast, the first stage returns to Earth, but the second stage we need to appropriately dispose of. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بہت جلد کھول دی جائے گی، بصورت دیگر ایران کو بہت شدید حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران پر ایک ایسا بڑا حملہ کرنے والا تھا جو دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑا فوجی حملہ ہوتا، تاہم ان کے بقول ایران نے ان سے رابطہ کر کے بات چیت کی درخواست کی، جس پر انہوں نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی۔ The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II,
And they called me and said very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त इसी हफ्ते बहाल होने का इम्कान है। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान यानी सेंटकॉम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ का जनूबी बहरी रास्ता तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुला और महफूज है। सेंटकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह के दौरान अमरीकी अफवाज ने 1000 से ज़्यादा जहाज़ों को इस अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह से गुजरने में मदद फराम की है। ताहम आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पर अमरीका और ईरान के दरमियान इख्तलाफ बरकरार है। ईरान का कहना है कि उसे आबनाए से गुजरने वाली बहरी आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने और जहाज़ों से फ़ीस वसूल करने का हक हासिल है, जबकि अमरीका और इसके इत्तेहादी इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं और आबनाए को पहले की तरह आज़ाद और खुला रखने का मुतालबा करते हैं। ईरान ने आबनाए के शुमाली हिस्से में अपने साहिल के करीब एक मखसूस बहरी रास्ता मुकर्रर किया है, जबकि अमरीका समेत मुतअद्दिद ममालिक पर मुश्तमिल जॉइंट मैरी टाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने जहाज़ों को जनूबी हिस्से में ओमानी पानी से गुजरने की सिफारिश की है। दूसरी जानिब अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग के दौरान अमरीका ने अपने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के ज़ख़ीरे का तकरीबन तमाम हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक मामले से बराह रास्त वाकिफ़ 2 ज़राए ने बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमरीका ने अपने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने तकरीबन तमाम आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स यानी ATACMS और प्रीसियन स्ट्राइक मिसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं। This is really the story starts in the 1990s. With the end of the Cold War, the U.S. defense industrial base was greatly shrunk. And peace dividend, I remember it. I covered it. Peace dividend, yeah. And so we had just-in-time production for a lot of stuff in the global economy, including for munitions. If you're bombing pickup trucks in Iraq and Afghanistan, you don't need huge stockpiles. But now with the return of major power war with Ukraine, with Iran, we do need these larger stockpiles. And so we knew we had a problem even before this report, but this report confirms it. अमरीकी हुकाम के मुताबिक ज़्यादा तशवीश पैट्रियाट और थार्ड मिसाइल दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स के ज़खायर में कमी है, क्योंकि नए मिसाइल तैयार करने की रफ्तार उनके इस्तेमाल की रफ्तार से कम है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले अमरीका के पास तकरीबन 2330 पैट्रियाट इंटरसेप्टर्स थे, लेकिन जुलाई के आखिर तक उनकी तादाद 759 से 827 के दरमियान रह गई थी। इसी तरह थर्ड इंटरसेप्टर्स की तादाद भी 452 से कम होकर 234 से 278 के दरमियान रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन ज़खायर को जंग से पहले की सतह तक वापस लाने में कम अज़ कम 2029 के वक्त तक का वक्त लग सकता है। ताहम अमरीकी महकमा दिफा ने इन खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौज दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज है और सदर की जानिब से कार्रवाई के लिए मुंतखब किए गए वक्त और मुकाम पर कार्रवाई करने के लिए इसके पास ज़रूरी सलाहियतें मौजूद हैं। इसी दौरान अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद से कबल उनके मलकियती गोल्फ कोर्स के करीब एक मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉस एंजलिस शेरिफ डिपार्टमेंट के मुताबिक 38 साला जैनिन जान को ट्रंप नेशनल गोल्फ कोर्स के अहाते में एक पिस्तौल और ममनुआ गोला बारूद के साथ पकड़ा गया है। हुकाम का कहना है कि मुश्तबा शख्स को गोल्फ कोर्स के करीब घूमते, तस्वीर और वीडियोस बनाते और सिक्योरिटी से मुतल्लक सरगर्मियों की निगरानी करते हुए देखा गया था। इसकी गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब सादा लिबास में मलबूस वफाकी एहलकारों ने मुकामी पुलिस को एक मशकूक शख्स के बारे में इतला दी। तलाशी के दौरान उसके पास 16 गोलियों वाली एक मैगजीन मिली, जबकि उसकी गाड़ी से एक भरा हुआ पिस्तौल और मजीद गोलियां भी बरामद हुई। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार शख्स एक अलग डकैती के मुकदमे में भी पुलिस को मतलूब था। ताहम पुलिस ने यह नहीं बताया कि आया इस शख्स का मकसद सदर ट्रंप को नुकसान पहुंचाना था या नहीं, और ना ही इस पर सदर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का कोई इल्ज़ाम आयद किया गया है। सदर ट्रंप कैलिफोर्निया में रिपब्लिकन पार्टी के लिए चंदा जमा करने के लिए एक इशाइया में शिरकत के लिए वहां मौजूद थे। Yeah, hi, Tom. So the LA County Sheriff's Department says that this happened on Saturday afternoon. The man they say they arrested is 38-year-old Janine John Taylor from Downey, California. Officials say plainclothes federal agents noticed him acting suspiciously at the Trump National Golf Course here in Rancho Palos Verdes, taking photographs and videos and appearing to monitor security planning activities ahead of President Trump's planned visit to the golf course tonight. दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा
कहा है कि आबनाए हुर्मुज के मामले पर ओमान के साथ मस्बत मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका की धमकियां इनको मुतासिर कर रही हैं। एक बयान में उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज पर ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात तकनीकी और सियासी तौर पर मस्बत रहे हैं। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज के मामले पर ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला अभी भी जारी है। इस्माइल बकाई का मजीद कहना था कि इन मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद बहरी जहाज़ों की महफूज वापसी के रास्तों का तयन करना है और इन मुज़ाकरात के हतमी नताइज का ऐलान इस अमल के मुकम्मल होने और मुआहदों को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद किया जाएगा। We are talking about a single corridor with two-way traffic, not 2 or 3 separate routes. This middle route is intended to be used temporarily. There will be no substantial change in the situation in the Strait of Hormuz as long as the United States continues its malicious actions, its naval blockade, its military aggression against Iran and its interests. ये बयानात अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से उस ऐलान के बाद सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त के हवाले से ईरान और ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, तहम अभी तक किसी हतमी मुआहदे तक रसाई हासिल नहीं हो सकी है। इन बयानात के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें तकरीबन 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई हैं, जिसकी बड़ी वजह अमरीकी हुकाम के वो बयानात हैं जिससे ईरान के साथ आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए किसी मुआहदे की उम्मीद बढ़ी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त हुई है कि आबनाए हुर्मुज से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते बहाल हो सकती है। इन बयानात के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन 5% कम होकर $80 फी बैरल से नीचे आ गई, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI की कीमत भी 5% से ज़्यादा गिरकर तकरीबन $76 फी बैरल रह गई है। तमाम गुज़िश्ता चंद माह के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त और नाकामी के उतार चढ़ाव ने आलमी तेल की मंडी को मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार रखा है। ईरान के हिमायत याफ्ता यमनी हुसी बागियों ने दावा किया कि उन्होंने बहराए अहमर में सऊदी अरब के एक ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। हुसियों के फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने एक वीडियो बयान में कहा कि सऊदी ऑयल टैंकर वफा को बहराए अहमर के शुमाली हिस्से में यनबा के सहल के करीब मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों से कामयाबी से निशाना बनाया गया है। उनका कहना था कि सऊदी अरब के खिलाफ बहरी मुहासरे के आगाज़ के बाद से ये 8वां बहरी जहाज़ है जिसे हुसियों ने निशाना बनाया है। तहम तर्जुमान ने मुबैना हमले के वक्त या उसके नतीजे में होने वाले मुमकिना जानी या माली नुकसान के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की हैं। تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية. रूस ने यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव और उसके गिरदोनवा में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 17 अफराद हलाक और 44 जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन को बर वक्त मजीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल इंटरसेप्टर्स फराहम किए जाते तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। उनका कहना था कि इत्तेहादी ममालिक की जानिब से एंटी बैलिस्टिक दिफाई निज़ाम की फराहमी में ताख़ीर खौफनाक जानी नुकसान और तबाही का सबब बन रही है। Потрібні відповіді на цей російський терор. Реальні відповіді світу. Єдина сильна реакція, вона справедлива. Реакція, яка справді досягає мети, допомагає людям. Це додаткова підтримка для нас в Україні. बुध की सुबह शुरू होने वाले रूसी हमलों में रिहायशी इमारतों और एक रेलवे स्टेशन और गोदामों को निशाना बनाया गया, जबकि कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं और खदशा है कि बाज़ अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। यूक्रेनी फ़िज़ाइया के मुताबिक रूस ने हमलों में 24 बैलिस्टिक और 4 एंटी शिप मिसाइलों के अलावा 115 ड्रोन हमले किए हैं,
जिनमें से 98 ड्रोन मार गिराए गए, तमाम किसी बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की इतला नहीं दी गई है। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा का कहना है कि हमलों में कीव और उसके अतराफ मौजूद लॉजिस्टिक मराकज़ और असला ज़ख़ीरा करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया गया, जहाँ मुबैना तौर पर हथियार और फौजी साजो सामान ज़ख़ीरा करने के अलावा ड्रोन्स तैयार और तकसीम किए जाते थे। रूस ने बहरे असवद में उड़ीसा की बंदरगाह के करीब 3 मालबरदार जहाज़ों को भी निशाना बनाने का दावा किया है और कहा है कि उनके जरिए असला और फौजी सामान मुंतकिल किया जा रहा था। उधर रूस के इलाके तोला में एक ड्रोन वाइल्ड बेरीज के गोदाम से टकरा गया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और एक शख्स जख्मी हुआ है। हालिया हफ्तों में रूस ने कीव पर फिजाई हमलों में इजाफा किया है, जबकि यूक्रेन भी रूसी इलाकों में ड्रोन हमलों में शिद्दत ला रहा है और तवानाई के मराकज़ समेत मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बना रहा है। दूसरी जानब यूक्रेन ने खैरसून में सामने आने वाली एक वीडियो पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें एक शख्स को ड्रोन के जरिए ताकुब का निशाना बनते देखा जा सकता है। यूक्रेनी हुकाम ने इसे शहरियों के खिलाफ दानिस्ता हमला करार दिया है। ताहम रूस और यूक्रेन दोनों का मौक़िफ़ है कि वो जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाते। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के इलाके सोरेंज में कोयले की एक कान में होने वाले धमाके में शांगला से ताल्लुक़ रखने वाले 34 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 28 अफराद का ताल्लुक़ एक ही गांव से था। बिलाल अहमद ने शांगला के इलाके पीराबाद में मुतासरीन के अहल खाना से बात की है। उनका कहना था कि उन्हें अपने प्यारों की लाशें मस्क शुदा हालत में मिली। मुतासरीन के ख़ानदानों के मुताबिक उनके अजीज़ रोज़गार की तलाश में कोयले की कानों में काम करने पर मजबूर थे। बाज़ अफराद अपने बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे कमाना चाहते थे। मरने से एक दिन कबल मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। इसको मैं कहता था कि कान पर क्यों गए। तो बंदा क्या करेगा, नहीं जाएगा कोयले के लिए तो किधर जाएगा, रोटी रोजी तो कमाना है। शांगला के गांव पीराबाद में सनेचर के रोज़ 28 मैयतें लाई गईं। जुमेरात को बलूचिस्तान के इलाके सुरेंज में कोयले की कान में हादसे में हलाक होने वाले 34 अफराद में से 28 का ताल्लुक इसी गांव से है। मरने वालों में ज्यादातर नौजवान शामिल हैं। सुफियान ने अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिया था और वो कॉलेज में दाखिले के लिए पैसे जमा कर रहे थे। हमारी सुफियान के चचा से बात हुई। उन्होंने बताया कि वो सुफियान के कोयले की कान में काम करने से परेशान थे। मरने से एक दिन कबल मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। इसको मैं कहता था कि कान पर क्यों गए। वो कहता था कि चाचू आप खुद मजदूर हो, गरीब हो, मैंने इम्तिहान दिया है और फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए पैसे चाहिए। इस इलाके के तकरीबन हर घर से एक या एक से ज्यादा लोग कोयले की कान में काम करते हैं। इस गांव से फरमानुद्दीन के घर से 4 जनाजे उठे। इस सारे से मेरे 2 भाई थे, एक कज़न था, एक भतीजा था। आज मैं अपनी गिरबान में जान के ना तो पता चल जाएगा कि किस तरह एक हादिसात होते हैं, एहसासात होते हैं बंदे के। बड़ी अजियत है, बहुत तकलीफ है, लेकिन बर्दाश्त कर दिया, क्या करेंगे। लवाहिकीन का गिला है कि उन्हें अपने प्यारों की लाशें मसक हालत में मिली, जिसकी वजह से वो उनका आखिरी दीदार नहीं कर सके। सुफियान की माँ को हमने इसका आखिरी दीदार नहीं करवाया। उसको हम कब्र पर ले गए तो वो बेहोश हो गई। मैंने उन्हें बताया कि लाश लाए थे मगर देखने के काबिल नहीं थी। कब्र को देखकर वो बेहोश हो गईं। फिर हम उनको चरपाई पर घर लाए। जो कंडीशन PMDC में था ना, गुस्ल के बाद, जनाजे के बाद हमारे मय्यत का, जब गाँव पहुँचे ना, इस तरह हालात नहीं थे इनके, वो काफ़ी ख़राब हुए थे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने जो सवारी का इंतज़ाम किया ना, अगर कोई हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँचा दे तो 3-4 घंटे लगेगा, और 25-26 घंटे के बाद अगर कोई लाश पहुँचेगा, और ज़ाहिर है इस गर्मी के हालात में, तो शायद इसकी कंडीशन जो है बदल हो जाती है, तो देखने के काबिल भी नहीं थे। 2009 से अब तक कोयले की कानों में पेश आने वाले हादसात में इस गांव के तकरीबन 124 अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा था, 11,000 से ज़ायद इस तरह अफराद है जो बिल्कुल बुरे हालत में पड़े हैं, मौजूरी के हालत में पड़े हैं। इसी तरह
हमारे पास जो इस तरह पूरे शंगले में 22,000 औरतें जो है वो बेवाएँ हैं, इस तरह 30,000 से ज़ायद बच्चे जो है वो यतीम है, मगर कोई उसका पुरसानी हाल नहीं है। वर्कर वेलफेयर फंड का यहाँ पर न कोई स्कूल है, न कोई कॉलेज है, न कोई अस्पताल है, न कोई कॉलोनी है लेबर का। आल पाकिस्तान माइंस फेडरेशन के मुताबिक मुल्क भर की कानों में काम करने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद का ताल्लुक शांगला से है, लेकिन इन मजदूरों के लिए हिफाजती इकदामात न होने के बराबर हैं। चीफ इंस्पेक्टर माइंस बलूचिस्तान के मुताबिक कानों में हादसात के बाद मामला अदालत के पास चला जाता है। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2026 ला रही है, जिसमें जुर्मानों और सजाओं को मजीद सख्त किया जाएगा। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म किए जाने को 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के सफ़र में एक नए और फैसलाकुन बाब का आगाज़ किया है। मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में दावा किया कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान खित्ते में बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत, कारोबार और खेलों समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ तरक्की हुई है और ख़वातीन और पसमानदा तबकात समेत उन लोगों को भी बाख्तियार बनाया गया है जो उनके बकौल तवील अरसे तक अपने बुनियादी आइनी हुकूक से महरूम रहे। 5 अगस्त 2019 को इंडियन हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए जम्मू और कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी थी और साबिक रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया था। दूसरी जानिब जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि 7 बरस गुजरने के बावजूद वो और उनकी जमात इस मामले को ना भूले हैं और ना ही मौजूदा सूरत हाल से समझौता किया है। उनका कहना था कि वो इन तमाम इक़दामात की वापसी के लिए पुरअज़म है जिनके नतीजे में कश्मीरियों के हुकूक सलब हुए और उनकी शनाख्त को ख़तरा लाहक हुआ। हमारे ज़ख्म जो हैं वो भरे नहीं, उल्टा हमें लग रहा था कि चलिए कुछ हद तक हमारे ज़ख्मों में जो है मरहम लगाया जाएगा और कम से कम हमसे जो स्टेटहुड का वादा है वो तो पूरा होगा। लेकिन आज जैसे आपने खुद कहा, आज सातवां साल है। 5 अगस्त 2019 को ये सब हुआ, आज 5 अगस्त 2026 है, 7 साल हो गए। हमसे तो वो वादा जो किया गया था वो भी अभी अधूरा है। बाकी चीज़ें तो दूर की बात, लेकिन जैसे हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते वक्त कहा, हम अपनी जगह कायम हैं ना। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उन नाइंसाफ़ियों को हम दोस्त। उधर पाकिस्तान ने भी इस मौके पर कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा है कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के इंडियन इक़दामात से जम्मू और कश्मीर की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं हुई और पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अज़म पर कायम है। म्यांमार के फौजी सरबराह मिन आंग यांग की आलमी सतह पर कबूलियत हासिल करने की कोशिशों को उस वक्त तक़वियत मिली जब उन्हें थाईलैंड के सरकारी दौरे की दावत दी गई। रवां साल के अवाइल में एक ऐसे इंतखाबात के बाद जिनके बारे में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, मिन आंग ने खुद को म्यांमार का सदर मुकर्रर कर लिया था। उनकी फ़ौज ने रूस और चीन की हिमायत के साथ मुल्क के उन कई इलाकों पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है जो बागी गिरोहों के कंट्रोल में चले गए थे। जोनाथन हेड ने थाईलैंड के सरहदी इलाके में वाक़े सौत का दौरा किया, जहां उन्होंने म्यांमार से खाना जंगी के खौफ के बाइस नकल मकानी करने वाले अफराद से बात की और जानने की कोशिश की कि वो अपने मुल्क में फ़ौज की बढ़ती हुई ताकत को किस नज़र से देखते हैं। मज़ीद तफसीलात उनकी इस रिपोर्ट में। यिन यिन ओंग एक बार फिर नकल मकानी की तैयारी में अपना सामान समेट रही हैं। 2 साल कबल शुमाल मगरबी म्यांमार में मुसल्लह फ़ौजियों की जानिब से अपने गांव से निकाले जाने के बाद वो दर-बदर हैं। वो और उनके हज़ारों पड़ोसी कई माह से खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम जंगलों और पहाड़ों के अंदर एक दूर दराज मकाम पर भाग गए थे। वहाँ कुछ भी नहीं था। हम दरिया का पानी पीते और उसी में नहाते थे। बैतुल खला के लिए भी हम सब इसी का इस्तेमाल करते थे। इतने सारे लोग एक साथ रह रहे थे कि वहाँ डायरिया फैल गया। वहाँ कोई क्लिनिक और डॉक्टर्स नहीं थे। वो बहुत मुश्किल वक्त था।
जिस खाना जंगी से बचकर वो भागी थीं वो आज भी जारी है, लेकिन फौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह मुज़ाहमत की तहरीक अब कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। रूस और चीन के हिमायत याफ्ता फौजी हुक्मरान ओंग आइन मज़ीद ताकतवर हो रहे हैं और जिस इनकलाब का ख्वाब बर्मा के अवाम ने देखा था वो थमता नज़र आ रहा है। ये कमरों की भूल भुलैयाँ उन मुतादिद महफूज पनागाहों में से एक हैं जो मैसूट में पनाह गज़ीनों के लिए कायम की गई हैं। यहाँ के हर दरवाजे के पीछे एक शख्स की दर्दनाक कहानी है। हम एक ऐसे 17 साल लड़के से मिलने जा रहे हैं जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाए। वो पकड़ा गया, जेल गया और उस पर तशद्दुद हुआ, लेकिन अब उसका कहना है कि उसकी सोच बदल गई है। When I was in prison, my opinions totally changed. जेल में रहते हुए मेरी सोच बदल गई। मुझे लगता है मुसल्लह बगावत अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो मुतहद नहीं है, वो आपस में लड़ते हैं और मुझे ये पसंद नहीं है। तो मुसल्लह जद्दोजहद पर से आपका यकीन उठ गया है? Yeah, I saw many. जी हाँ, मैंने बहुत सी हलाकतें देखी हैं और ये सब देखना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने मुसल्लह जद्दोजहद छोड़ दी। यानी आपने तहरीक से मुकम्मल तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली है? जी हाँ, मैंने मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब उसने ऑनलाइन तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया है और महफूज पनाहगाह में रहने वाले बच्चों को पढ़ाता है। हालांकि उसके साथी अब भी लड़ने को तैयार हैं। ये जोड़ा अपने पहले बच्चे की पैदाइश के लिए सरहद पार आया है। बच्चे के वालिद कभी रंगून में एक बारटेंडर होते थे, फिर एक मजबूत बागी गिरोह का हिस्सा बन गए और वापस लड़ने के लिए जाने के लिए पुरअज़्म हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए आया हूँ, मैं रुका नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा इनकलाब कामयाब होगा क्योंकि वो पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उन शहरियों के ख़िलाफ़ जिनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी ज़िम्मेदारी है। फ़ौज किसी कीमत फ़ाते नहीं होगी। यिन यिन ओंग और उनका बेटा अपने नए महफूज ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। उनके पास कोई रोज़गार नहीं और पैसे भी बहुत कम हैं और हर वक्त डिपोर्ट होने का ख़तरा रहता है। वो वापस अपने गांव जाना चाहती हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक मिन ओंग आइन इक़्तिदार में हैं वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो उन लाखों बर्मी शहरियों में शामिल हैं जो जलावतनी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। इंडिया की मशरकी रियासत बिहार के बांकीपुर के हाई प्रोफाइल ज़िमनी इंतखाबात में जिन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने कामयाबी हासिल कर ली है। गुज़िश्ता 31 बरस से इस नशिस्त पर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर कौन है? माजी में नरेंद्र मोदी की सियासी कामयाबी में अहम किरदार अदा करने वाले किशोर ने अब बीजेपी के खिलाफ ये इंतखाब कैसे जीता और उनकी कामयाबी बिहार और इंडिया की सियासत के लिए क्यों अहम समझी जा रही है, बता रहे हैं महताब आलम। बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए। ये थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने पीर के रोज़ इंडियन रियासत बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके से जीत हासिल करके एक तारीख रकम कर दी है। ये जीत तारीखी इसलिए है कि प्रशांत किशोर ने एक ऐसे सीट पर जीत हासिल की है जहां नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी गुज़िश्ता 31 वर्षों से जीतती रही है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर का ये पॉलिटिकल डेब्यू था, मतलब वो पहली बार खुद इलेक्शन लड़े और जीते भी। इससे कबल 2025 में उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी के सारे उम्मीदवार जीत हासिल करने से नाकाम रहे थे। तीसरी अहम बात ये कि बांकीपुर असेंबली हलके से बीजेपी के मौजूदा सदर नितिन नबीन एमएलए रहे हैं और उनके इस्तीफा देने के बाद ही ज़िमनी इंतखाब की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन और उनकी कामयाबी की वजह क्या है और इस जीत से रियासत और मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। प्रशांत किशोर बिहार के रोहतास ज़िले में 20 मार्च 1977 को पैदा हुए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर की थी, लेकिन वो जल्द ही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और कंसल्टिंग के शोबे में आ गए। प्रशांत किशोर 2011 में पहली दफ़ा उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे, को दोबारा जीतने में मदद की थी। 2013 में प्रशांत किशोर ने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत की, जो कि बाद में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या
IPAC बनी और जिसके जरिए नरेंद्र मोदी के चाय पे चर्चा जैसे कैंपेन्स को डिज़ाइन किया गया था। माहिरीन का ख्याल है कि 2014 में नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने में प्रशांत किशोर के डिज़ाइन करदा कैंपेन्स और स्ट्रैटजीज़ का बहुत अहम रोल रहा था। बाद में उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी से दूरी इख्तियार कर ली और दूसरे सियासी रहनुमाओं और जमातों के साथ काम करना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने 2018 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी ज्वाइन किया। नवंबर 2025 के इंतखाबात में उन्होंने 238 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से कोई कामयाब नहीं हो सका। अब सवाल ये उठता है कि एक पार्टी जो सिर्फ 9 महीने पहले सारी सीट्स पर हार गई थी, उसने ये जीत कैसे हासिल कर ली? माहिरीन इसके 5 वजूहात बताते हैं। उनका कहना है कि इसकी पहली वजह हालिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। ख्याल है कि दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह बिहार में भी बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। 25 जुलाई को बिहार बंद का कॉल दिया गया था और इस दौरान पुलिस ने सीवान ज़िले में प्रोटेस्टर्स पर कार्रवाई की थी और उसमें AK-47 से फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस प्रोटेस्ट की वजह से रियासत के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्टर्स को जेल भी भेजा गया था, जिसकी वजह से आवाम में बहुत गुस्सा था। दूसरी वजह भारत तिवारी की इनकाउंटर में मौत को बताया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी लव कुमार मिश्रा के मुताबिक रियासत के CM सम्राट चौधरी ने इस मामले में एक्शन लेने में बहुत देर कर दी, जिसको प्रशांत किशोर ने इंतखाबी मुद्दा बनाया। तीसरी वजह बीजेपी के अंदर इंतशार। ख्याल रहे कि इस सीट से बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, बाद में नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। माहिरीन का ख्याल है कि इस सीट से कई सीनियर बीजेपी लीडर उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, लेकिन बिल्कुल नए शख्स को उम्मीदवार बनाएगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हुआ। चौथी वजह कम वोटिंग को बताया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी सुरूर अहमद का कहना है कि 35% से भी कम वोटिंग होना बीजेपी के खिलाफ और प्रशांत किशोर के फेवर में गया। पांचवी और आखिरी वजह, वज़ीर आला सम्राट चौधरी पर लगातार निशाना। इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रशांत किशोर ने लगातार रियासत के वज़ीर आला सम्राट चौधरी को अपना निशाना बनाया और ये हिकमत अमली उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। अब एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर की इस जीत या बीजेपी की हार का रियासत और मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? माहिरीन का ख्याल है कि ये एक सिंबॉलिक जीत है और इससे प्रशांत किशोर को अपनी पैन इंडिया पॉलिटिकल लीडर होने की आइडेंटिटी बनाने में मदद मिलेगी। कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि अगर प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को PM बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं, तो वो उन्हें इक़्तिदार से हटाने में भी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और प्रशांत किशोर की ये जीत उसकी एक शुरुआत है। ताहम सीनियर सहाफ़ी सुरूर अहमद का कहना है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि इस जीत से आगे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल जो बात तय है वो ये कि बीजेपी के लिए इसको एक बड़ा झटका माना जा सकता है। पाकिस्तान की सेनेट की एक कमेटी ने बैंकों को हिदायत की है कि वो ख़वातीन मुलाजमीन को ज़बरदस्ती अबाया पहनने पर मजबूर करने से मुतालिक किसी कानून या हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर सकते। साफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद हनीफ अपने वीलाग में इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं कि इस फैसले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। पिछले साल एक सीनियर बैंकर खातून से मिला जो अपनी नई नौकरी से काफ़ी परेशान थी। जब बैंक ने उन्हें बड़ी तनख्वाह और आला ओहदे पर नौकरी दी थी, तो वो एक आम सा बैंक था। बैंक का एक ही काम होता है और वो है नोट बनाना। लेकिन इस बैंक को भी कई पाकिस्तानी बैंकों की तरह समझ आ गई कि अगर बैंक को थोड़ा सा इस्लामी टच दिया जाए तो नोट ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। इस काम के लिए किसी मुफ्ती साहब को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर रखना पड़ता है। मुझे ये इल्म नहीं है कि मुफ्ती साहिबान ये काम पैसे लेके करते हैं या सदका जारिया समझकर, लेकिन हमारे इस नए बैंक की मुसलमानियाँ करते हुए मुफ्ती साहब ने मालिकान को ये भी समझाया कि अगर जो बैंक की ख़वातीन मुलाजिम हैं, अगर उनको अबाया पहनाया जाए तो बैंक ज़्यादा इस्लामी हो सकता है।
ہماری بینکر بہن پاکستان میں نوکری کرنے والی زیادہ تر خواتین کی طرح ہمیشہ سے شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتی تھیں. دوپٹہ موقع محل دیکھ کے کبھی سر پر اور کبھی کندھے پر. اب وہ پریشان تھیں کیونکہ نوکری کے سلسلے میں اسلام آباد سے کراچی شفٹ ہو گئی تھیں. بچوں کے اسکول کا داخلہ بھی ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ عبایا تو پہننا ہی پڑے گا. انہوں نے اپنے بینکنگ کے پیشے پر لعنت ملامت کی. مفتی صاحب کو کچھ نہیں کہا لیکن بینک کے مالک کے بارے میں یہ ضرور کہا کہ اس کے اپنے گھر میں تو اس کی بیوی یا بیٹیاں عبایا نہیں پہنتی. اب سینٹ کی ایک کمیٹی نے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی خواتین پر زبردستی عبایا پہنوانے والا قانون نافذ نہیں کر سکتے. تو مجھے اپنی بینکر بہن کے لیے تھوڑی سی خوشی محسوس ہوئی. مفتی صاحب پر افسوس ہوا کہ اگر آپ نے واقعی نوٹوں کے اس قدیم دھندے کو مسلمان کرنا ہے تو کبھی یہ شرط بھی نافذ کریں کہ صرف عبایا پہننے والی خواتین ہی اکاؤنٹ کھول سکتی ہیں، یا صرف باریش صوم و صلات کے پابند مومن حضرات کے ہی ان بینکوں میں نوٹ قبول کیے جائیں گے. رشوت لینے والے اور غریبوں کا خون چوسنے والے ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ نہیں کھولے جا سکیں گے. اگر کسی اسلامی بینک نے اس طرح کا کبھی کوئی فتویٰ دیا ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں اور مفتی صاحب دونوں مرد ہیں اور دونوں جانتے ہیں کہ عورت کو اگر آپ 7 عبائے بھی پہنا دیں تو ہم میں سے ایسے مرد ہیں جو اس کے اندر سے ایک عریاں یا نیم عریاں خاتون ڈھونڈ لیں گے. بینکوں کے مالکان کو سلام، کیونکہ منڈی میں ہمیشہ سے یہ الزام لگتا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز بھی بیچنی ہو اور وہ چیز کچن میں استعمال ہونے والے مسالے بھی ہو سکتے ہیں اور ایئر کنڈیشن بھی ہو سکتا ہے تو آپ عورت کے تھوڑے سے ہونٹ دکھائیں، اس کے کپڑے چند انچ کم کر دیں تو آپ کا منافع بڑھ سکتا ہے. لیکن ان بینکاروں نے ایک نیا بزنس آئیڈیا ڈھونڈا ہے کہ اگر عورت کو عبایا پہنایا جائے تو نوٹ اور بھی زیادہ بن سکتے ہیں. جیسا کہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ میں دین اور دوسرے میں دنیا. تو آپ ایک ہاتھ سے تسبیح گھماتے رہیں، دوسرے ہاتھ سے نوٹ گنتے رہیں اور ایک ہاتھ کو کبھی یہ پتہ نہ چلے کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے. امریکی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ کا ایک حصہ ممکنہ طور پر چاند سے ٹکرا گیا ہے. تاہم ماہرین کے مطابق اس واقعے سے زمین کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں. راکٹ کا یہ بلائی حصہ تقریباً 5 منزلہ عمارت کے برابر تھا اور اس کا وزن کم از کم 4000 کلو گرام بتایا گیا ہے. تصادم سے پہلے یہ تقریباً 2.43 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے خلا میں سفر کر رہا تھا. یہ راکٹ جنوری 2025 میں امریکہ اور جاپان کے ایک مشترکہ خلائی مشن کے تحت لانچ کیا گیا تھا اور اس کا مقصد چاند پر بھیجی جانے والی 2 خلائی گاڑیوں کو زمین کے مدار سے نکل کر چاند کی جانب سفر کرنے کے لیے ضروری رفتار فراہم کرنا تھا. مشن مکمل ہونے کے بعد راکٹ کا بلائی حصہ خلا میں گردش کرتا رہا. تاہم گزشتہ تقریباً 18 ماہ کے دوران چاند اور سورج کی کشش ثقل نے اس کا راستہ تبدیل کیا اور بالآخر یہ چاند سے ممکنہ تصادم کے راستے پر آ گیا. اس تصادم کو براہ راست ریکارڈ کرنے کے لیے چاند کے گرد مدار میں کوئی خلائی جہاز موجود نہیں تھا. اس لیے سائنسدان تصادم سے پہلے اور بعد میں حاصل کی گئی تصاویر اور ڈیٹا کا موازنہ کریں گے تاکہ چاند کی سطح پر بننے والے ممکنہ گڑھے یا دیگر تبدیلیوں کا جائزہ لیا جا سکے. ماہرین کے مطابق اس واقعے کی سائنسی اہمیت فوری طور پر نہیں بلکہ تقریباً 1 ہفتے بعد سامنے آئے گی جب متاثرہ مقام کی تفصیلی تصاویر اور ڈیٹا کا تجزیہ کیا جائے گا. ناسا کی ترجمان نے کہا ہے کہ ناسا سائنسی مقاصد کے لیے تصادم کے ممکنہ مقام کی نگرانی جاری رکھے گا. تاہم زمین کو اس واقعے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. The mission he's talking about was the iSpace Hakuto and the Firefly Blue Ghost mission that we launched. As you all see on the webcast, the first stage returns to Earth, but the second stage we need to appropriately dispose of. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے سے چاند کی سطح پر خلائی ملبے کے تصادم کے اثرات اور مستقبل کے خلائی مشنز کے لیے اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں.
उर्दन के दारुल-हुकूमत ओमान में वजारती इजलास में पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने खिताब करते हुए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों बिलखसूस मशरक़ी अल-कुद्स और मगरबी किनारे की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने मस्जिद अक्सा में मुबैना खिलाफ वर्जियों, इसराइली बस्तियों की तोसी, आबादकारों के तशद्दुद और मुक़द्दस मकामात की तारीख़ी और कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिशों की मज़म्मत की है। इसहाक डार ने अल-कुद्स में इस्लामी और मसीह मुक़द्दस मुकामात पर उर्दन की हाशमी सरपरस्ती के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा करते हुए कहा कि मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स पर इसराइल की कोई खुद मुख्तारी तस्लीम नहीं की जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क ने कहा है कि ईरान में 19 मार्च से अब तक कौमी सलामती से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात के तहत कम अज़ कम 56 अफराद को फांसी दी जा चुकी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि सरकारी मालूमात के मुताबिक फांसी पाने वालों में 27 अफराद ऐसे थे जिनके मुकदमात जनवरी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों से मुतल्लिक़ थे। वोल्कर तुर्क के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ईरान में सजाए मौत सुनाने और इन पर अमल दरामद की शरह में नुमाया इजाफा देखने में आया है। उन्होंने ईरानी हुकाम पर जोर दिया है कि तमाम सजाए मौत पर फौरी पाबंदी आयद की जाए और बातदरीज इस सजा के मुकम्मल खात्मे की जानिब पेशरफ्त की जाए। भारत की मारूफ अदाकारा तब्बो, जिनका असल नाम तबस्सुम जमाल हाशमी है, ने अपने शख्सी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने नाम, तस्वीर, शनाख्ती मुशाबहत और शख्सियत से वाबस्ता दीगर खसूसियात के मुबैना गैर मिजाज इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ तलब किया है। शख्सियत के हकूक, जिन्हें पब्लिसिटी राइट्स भी कहा जाता है, ऐसे हक को ज़ाहिर करते हैं जिसके तहत कोई फ़र्द अपनी शनाख्त या शख्सियत से माली या दीगर फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसमें किसी फर्द का नाम, तस्वीर, आवाज़, अंदाज या वो जुमले या हरकत शामिल हैं जो इससे मंसूब हैं। वाज़ेह है कि दिल्ली हाई कोर्ट इससे कबल भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह, कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर और आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और अदाकार पवन कल्याण के शख्सी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अहकामात भी जारी कर चुकी है।